Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Life in Desert Regions. And what we are going to read in this chapter about the Sahara and the Ladakh desert. Now what do you mean by desert? Desert क्या होता है? जहाँ आपको दूर दूर तक कोई वेजिटेशन दिखाई ना दे, जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, that is called a desert. Deserts दो टाइप के होते हैं, hot desert and cold desert. Now let us read the definition of desert. Any place in the world that receive less than 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, यानी जहाँ पर सालाना 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है उस जगह को क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं. रेनफॉल इतनी कम होती है इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ओके, और ये हमेशा ड्राई रहते हैं और यहाँ पर वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाती. फाइन. सो डेजर्ट हैव ऑफ टू टाइप, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. Some of the hot deserts of the world include the Sahara, the Kalahari Desert, the Saudi Arabian Desert, the Thar Desert, the Great Victoria Desert, etc. And the cold desert include Siberian Desert and the Antarctica. The Ladakh region of the Himalayas is a mountain desert, that is a high altitude desert. Fine. Now let us read about the Sahara. The Sahara Desert, where it is located? Sahara is the longest hot desert in the world. It is located in North Africa. कहाँ located है? North Africa में. Fine. This hot desert extends across the northern part of the continent from the Atlantic Ocean in the west to the Red Sea in the east. The land of the Sahara does not have uniform relief. अब यहाँ की जो landform है वो काफ़ी different है. Much of it is plain, but there are a few mountain ranges and plateaus. ज़्यादातर कैसी है? Plain है, लेकिन किसी जगह पर mountain भी हैं और कुछ जगह पर plateaus भी हैं. Emi Kosi, that is the height of 3,415 meter in the Tibbeti range in the highest peak. This is the Tibbeti range in the highest peak. Emi Kosi. Fine. ये क्या है? सहारा डेजर्ट की हाईएस्ट पीक है. The Ahaggar is another important range. Sahara is dotted with several oases where water is available. Now what is oasis? Oasis क्या होता है? जहाँ पर थोड़ा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अवेलेबल होता है. फाइन. सो सहारा इज डॉटेड विद सेवरल ओएसिस, यानी जगह जगह पर ऐसे ओएसिस बने हुए हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी जो है वो अवेलेबल होता है. सहारा इज now Bilma and Kufra are some of the larger ones, and the Nile and Niger rivers flow along the eastern and southern borders of the desert respectively. Lake Chad on the southern border is the only freshwater lake in this desert. Okay, this is the only freshwater lake. Which one? Lake Chad. Okay. Now what is oasis? Oasis, the perennial sources of fresh water like springs and ponds, are found in many places in the interiors of deserts, vegetation and settlements from around them. These are called oases. Oasis क्या होते हैं? Oasis OASIS. ठीक है. Oasis क्या होते हैं? Oasis ऐसी जगह होती हैं डेजर्ट में जहाँ पर छोटा सा पॉन्ड बना होता है या फिर स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, और ओएसिस के आसपास क्योंकि पानी वहीं पर अवेलेबल होता है डेजर्ट में, तो ओएसिस के आसपास काफ़ी वेजिटेशन भी देखने को मिलती है डेजर्ट में, एंड सेटलमेंट, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो वहीं पर रहना, पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं. नाउ डू यू नो the lowest point lies 133 in below measure level in the Quatra depression in Egypt, and this is the location of Sahara desert in Africa. Now next is climate. क्लाइमेट कैसा है? अब ये हॉट डेजर्ट है तो क्लाइमेट कैसा होगा? जनरली ड्राई, एक्सट्रीम हॉट. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट रिसीव सम प्रेसिपिटेशन इन विंटर व्हाइल द सदर्न पार्ट रिसीव सम रेनफॉल इन समर. ठीक है, कुछ जो रेनफॉल होती है तो नॉर्दर्न पार्ट में कौन से टाइम पर होती है? विंटर में होती है, और सदर्न पार्ट में समर में रेनफॉल होती है. इन द सहारा द समर्स आर वेरी हॉट, द विंटर्स आर क्वाइट कोल्ड इन द सब ट्रॉपिकल नॉर्थ बट माइल्डर इन द ट्रॉपिकल साउथ, एंड diurnal as well as seasonal temperatures vary widely, especially in the north. The western coastal region has a relatively cooler climate due to influence of the cold Canaries current flowing along the coast. And do you know all azile in
Sahara Desert south of Tripoli, Libya recorded the highest temperature, and that is 57.7 degrees Celsius in 1992. So see how hot it is. Now next डिस्कस फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा एंड फोना, अब पानी बहुत कम होता है, ठीक है, तो वेजिटेशन कैसी होगी, बहुत कम वेजिटेशन होती है, सिर्फ ऐसी ही वेजिटेशन होती है जिनकी प्लांट्स की लॉन्ग रूट होती है, वैक्सी और लेदरी लीव्स होती हैं, ठीक है, ताकि वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकें. कौन कौन से प्लांट यहाँ पर ग्रो होते हैं, जैसे कि कैक्टस, एसासिया, बैबू ट्री एटसेट्रा, एंड पाम ट्री ग्रो वाइडली नियर द ओएसिस. द एनिमल स्पीसीज फाउंड इन द Sahara include the sand fox, jerboa, gerbil, jackal, gazelle, oryx, camel, sheep, etc. And reptiles include lizards, cobras, chameleon, etc. Many birds like ostriches, desert eagles, owls, etc. are also found here. Now नेक्स्ट डिस्कस एग्रीकल्चर. मेन क्रॉप क्या है यहाँ की, मेन क्रॉप है यहाँ की मिलेट्स. मिलेट्स क्या होते हैं, जो आपके जवार बाजरा होते हैं, ठीक है, दैट इज मिलेट्स, तो ये ग्रो होते हैं. उसके अलावा बार्ले, मेज, कॉटन, टैबाकू एटसेट्रा, एंड इन सम प्लेसेस व्हीट इज ऑल्सो ग्रोन. इजिप्ट लाइज इन द डेजर्ट एंड इट इज वाटर्ड बाय द लाइफ गिविंग रिवर नाइल. दैट इज वाई दे कॉल इजिप्ट एज द गिफ्ट ऑफ नाइल, क्योंकि सारा पानी जो है एग्रीकल्चर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इजिप्ट में जो पानी है वो कहाँ से अवेलेबल होता है, रिवर नाइल से. ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इजिप्ट लाइक कॉटन, मेज, व्हीट, मिलेट्स, राइस एंड शुगर केन. और इसीलिए पानी अवेलेबल होने के कारण यहाँ पर हर तरीके की क्रॉप ग्रो होती है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज. ट्रांसपोर्ट, कैमल, आपको पता है डेजर्ट का शिप कौन होता है, शिप ऑफ द डेजर्ट इज कॉल्ड कैमल. ओके, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन द सहारा, बेस्ट सूटेड टू द हार्श क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट. क्यों, क्योंकि कैमल जो है काफ़ी दिन तक पानी के बिना सर्वाइव कर सकता है, और उसके जो पैडेड फिट होते हैं वो सैंड में ईजिली वॉक कर सकता है, ठीक है. तो बहुत सारे लोग जो हैं पूरे कैमल का कारवां लेकर चलते हैं अपने साथ, ठीक है, अपने साथ अपना गुड्स लेकर चलते हैं और अपने साथ कैटल्स लेकर चलते हैं, ठीक है, किसकी तलाश में, पानी की तलाश में. इन इजिप्ट द नाइल एंड इट्स कैनल्स प्रोवाइड गुड इनलैंड वाटरवेज. यहाँ पर रिवर भी हैं तो वाटरवेज भी हैं. उसके अलावा एयर से भी सहारा जो है उसके काफ़ी पार्ट वेल कनेक्टेड हैं बाकी देशों से. एंड द सी पोर्ट्स ऑफ द सहारा आर अ पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन स्यूज कैनल रूट. एंड कायरो, द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, इज द लार्जेस्ट सिटी इन सहारा. गीजा, फेमस फॉर इट्स pyramids and sphinx, is the major tourist center. Timbuktu is Mali is an important trading post, and Port Said and Alexandria in Egypt and Tripoli, the Libyan city, are big ports on the Mediterranean Sea. Next is people. People in the Sahara Desert region have adjusted themselves to live in the harsh climate. अब जैसा जहाँ का मौसम होता है, वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, वहाँ के लोग जो हैं उसी तरीके के क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है. However, the density of population is very low. The Sahara Desert is home to nomadic tribes, namely Bedouins and Turgis. And they practice nomadic herding, moving from one place to another with their animals in search of food and water. यानी यहाँ पर कौन से लोग रहते हैं, यहाँ पर मोस्टली ट्राइब्स रहती हैं. कौन से ट्राइबल पीपल, बेडोइंस एंड तुरग्स, ठीक है. ये लोग क्या करते हैं, ये अपने एनिमल्स के साथ इधर से उधर मूव करते रहते हैं फूड एंड वाटर की सर्च में. दे रियर sheep, goats, camels and horses. These animals provide them milk, hide, wool, etc. and these trades locally in dates and drugs. These desert stretches of North Africa are rich in oil, and Algeria, Libya and Egypt have large reserves of oil. Other minerals in the Sahara Desert are iron, manganese and uranium. Now in the Sahara Desert, water is available in some places due to springs, that is called oases, right? Around these oases with the little water available, people manage to do some cultivation. इस तरीके से oases होते हैं जहाँ पर आपको दूर से पानी दिखाई देगा, फ्रेश वाटर होता है, तो यहाँ पर लोग रहते हैं आसपास में और वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं. Life in the Sahara Desert is difficult and the natives have to adapt their lifestyle according to the physical condition. They wear loose and light cotton cloth to protect
प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट एंड डस्ट। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, धूल भरी हवाएं उड़ती हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, खुले खुले, और अपनी बॉडी को हीट एंड डस्ट से बचा पाते हैं। Their houses have thatched roof and are thick-walled with small windows to prevent heat. And when traveling over long distances, they carry water in containers made from goat or camel skin, which keeps the water cool. जो पानी को क्या रखती है, ठंडा रखती हैं. In recent times, mining activities and oil exploration have enabled them to develop their economy and import their requirements from other countries. ठीक है, तो ऑयल के रिजर्वर यहाँ पर हैं, इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं इकोनॉमिक क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, और बाकी देशों से अपना सामान जो है, जो भी उनका रिक्वायरमेंट का सामान है, वो इम्पोर्ट करने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं. The life of the people in the Sahara is gradually changing to a more modernized one. Next is लद्दाख इन इंडिया. अभी हमने पढ़ा सहारा हॉट डेजर्ट, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लद्दाख इन इंडिया. लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट, ठीक है. जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में लद्दाख लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जंस्कार माउंटेन्स इन द साउथ form its boundaries. Indus is the main river of Ladakh. Which is the main river of Ladakh? Indus. ठीक है, ये लद्दाख डेजर्ट है जम्मू एंड कश्मीर के इस पार्ट में, एंड इट हैज formed deep valleys and gorges. There are several glaciers in Ladakh, one of them being Gangotri Glacier. Next is climate. क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? क्लाइमेट क्या है? एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है. एटमॉस्फेयर जो है वो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि सन जो है, सन आने के बाद भी इतना ज़्यादा वो ठंडा ही रहता है, ज़्यादा हॉटनेस नहीं आ पाती. इवन इन समर द डेज आर क्वाइट कोल्ड विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 6 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, एंड ड्यूरिंग द नाइट इट ड्रॉप बिटवीन बिलो 3 डिग्री सेल्सियस. विंटर्स जो हैं वो और भी ज़्यादा ठंडी होती हैं, जिसमें डे का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और नाइट टेम्परेचर जो है वो एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एनुअल रेनफॉल जो है वो 10 सेंटीमीटर से भी लेस होती है, और रेन जो है मोस्टली लद्दाख फॉल्स इन द रेन शेडो रीजन ऑफ द जंस्कार रेंज. मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है तो बारिश जो है ज़्यादातर स्नोफॉल की फॉर्म में होती है. नाउ डू यू नो लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचन विच मीन्स स्नो लैंड, क्योंकि एक कोल्ड डेजर्ट है, बारिश जो है वो भी स्नोफॉल होती है, तो इसको स्नो लैंड के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज खापाचन. अर्लियर इट वॉज नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज मून लैंड, ब्रोकन मून एंड शोंग्रीला. Such names suggest that Ladakh was remote or inaccessible place. इन नामों से क्या पता लगता है कि जैसे चांद पर जाना पॉसिबल नहीं है, हर कोई नहीं जा सकता, तो लद्दाख जो है वो पहले इनएक्सेसिबल था, हर कोई वहाँ पर नहीं जा सकता था, इसीलिए पुराने टाइम में अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता था. नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फोना. अब कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ हार्श क्लाइमेट है, इसके कारण यहाँ पर वेजिटेशन जो है बहुत कम ग्रो हो पाती है. अब वेजिटेशन कम ग्रो होती है तो एनिमल्स भी बहुत कम मिलते हैं. लाइक द ग्रासेस एंड श्रब्स ग्रोइंग ऑन द माउंटेन स्लोप्स प्रोवाइड स्कैंटी पास्चर विद सपोर्ट ग्रेजिंग एनिमल्स. स्टंटेड विलो एंड पॉपुलर ट्रीज आर फाउंड मेनली इन द वैलीज एंड अलोंग द रिवर्स, एंड junipers आर फाउंड ऑन द हायर स्लोप्स. Wildlife includes wild goats and yaks, a type of wildlife called kiang, and birds such as choker, hill pigeon, snow pigeon, carrion crow, Himalayan giraffe, and golden eagle. The Ladakh ural, a type of wild sheep with the reddish coat, is native of the origin. यानी यहाँ पर ये यहीं पर मिलती है, लद्दाख में ये गोट देखने को मिलती है, that is wild sheep. Okay. Next is agriculture. एग्रीकल्चर कैसे होती है? लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है. द हीट फ्रॉम द सन इज इनफ टू राइपन सम क्रॉप. फिर भी जो सन रेज पड़ती हैं वो कुछ क्रॉप को राइप करने में हेल्प कर पाती हैं. सोइंग इज मोस्टली डन इन द मंथ ऑफ मे एंड हार्वेस्टिंग इन सेप्टेम्बर टू अवॉइड द फ्रोस्ट, ताकि बर्फ से पहले ही वो लोग क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं. बिलो 3000 मीटर्स हाइट व्हीट is the main crop and elsewhere barley is the widely grown. यानी 3000 मीटर हाइट से नीचे, ठीक है, वहाँ पर क्या ग्रो होता है, व्हीट ग्रो होता है, बाकी जगह पर बार्ले ग्रो होता है. Grain farming is supplemented by fruit growing and livestock raising. Apricot is the main fruit and
other fruits including apples, watermelons, grapes, mulberries, etc. A variety of vegetables are also grown. The Indian Army is helping the people to produce more fruits and vegetables. The mountain slope have extensive pastures. Almost every family keeps some livestock जैसे याक, sheep and goat, क्योंकि इनसे इन्हें दूध मिलता है, मीट मिलता है, बटर मिलता है, पश्मीना वूल मिलती है जो कि इनका एक सोर्स ऑफ इनकम है. तो ज़्यादातर फैमिली के पास ये लाइव स्टॉक मिलेगा. लद्दाख is one of the few trans-Himalayan areas which is open to outside visitor. This has helped in the development of flourishing tourist trade. यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने आते हैं तो टूरिस्ट से यहाँ की इकोनॉमी बढ़ती है. Now next is people. अब यहाँ जो लोग रहते हैं उन्होंने अपने आप को, अपनी बॉडी को यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है. द गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल प्लान्स टू इम्प्रूव द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल विच इंक्लूड इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. यहाँ की लोगों की लाइफ ईजी हो सके इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटी जो है यहाँ पर इम्प्रूव की हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. सेकेंड इज़ tapping of potential resources for the development of hydroelectric project and introduction and development of irrigation facilities and डेवलपमेंट ऑफ फोडर प्रोडक्शन ताकि एनिमल वगैरह जो हैं वो अच्छे से ग्रेज कर सके. नेक्स्ट इज प्लांटेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्रीज लाइक पॉपुलर्स एंड विलोज टू मीट द नीड्स ऑफ फ्यूल वुड ताकि फ्यूल के लिए वुड मिल सके. एंड इम्प्रूवमेंट इन द लोकल ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक यानी वहाँ के जो लोकल ब्रीड हैं, लोकल एनिमल हैं, उनकी संख्या बढ़ सके. एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट इंडस्ट्री. फाइन. सो ये गवर्नमेंट ने पहल की है लोगों की हेल्प करने के लिए. ड्यूरिंग द विंटर सीजन नो वर्क इज डन इन द फील्ड्स बट एनिमल्स हैव टू बी लुक्ड आफ्टर. सर्दियों में कोई खेतों का काम नहीं हो पाता क्योंकि स्नोफॉल होती है, तो उस टाइम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स पर ध्यान देते हैं. एंड द मेन वर्क ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज वीविंग. ठीक है, यहाँ पर अब पश्मीना वूल मिलती है तो सर्दियों में ये लोग क्या करते हैं, वीविंग करते हैं. दैट इज मोस्टली डन ऑन प्रिमिटिव लूम एंड अलोंग एवरी वाटर कोर्स नेचुरल और मैन मेड देयर इज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड अंडर क्रॉप. जहाँ पर भी पानी थोड़ा बहुत मिलेगा, ओएसिस जहाँ पर मिलेंगे वहीं आसपास छोटे छोटे गांव बस जाते हैं. वहाँ पर सब लोग रहते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ अपनी बना लेते हैं. ठीक है, कुछ घर आपको ब्रिक्स के मिलेंगे, कुछ घर आपको माउंटेन रीजन पे थैच्ड मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं फिर छोटे छोटे विलेजेस बनाकर वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर भी फार्मिंग पॉसिबल होती है. Now Leh. Leh is the commercial and political capital of Ladakh that enjoys excellent connectivity with the state capital Srinagar and the rest of the country through roadways and airways. जहाँ से लेह से सारी कंट्री जो है आपस में वेल कनेक्टेड है. नेशनल हाईवे IA links Leh with Kashmir Valley through Jojila, Rohtangla, Barlachala and Tanglangla, that is Lungalachala, etc. All these passes become blocked due to snow during winter. Only in summer is the snow cleared and the road reopened. सिर्फ गर्मियों में ही स्नो को हटाया जाता है और ये जो रोड है, पासेस हैं, ये ओपन होते हैं. सर्दियों में ये सारे ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू हैवी रेनफॉल. एंड द टूरिस्ट सीजन कौन सा होता है लद्दाख में, दैट इज मई टू नवंबर एज द जोजिला पास इज क्लोज्ड फॉर द रिमेनिंग मंथ्स. लद्दाख इज वन ऑफ द लास्ट प्लेसेस वेयर तिब्बतन Buddhism continues to be practiced as a living religion. Now let's recall the chapter. A desert is a region which generally receives less than 25 centimeter of rainfall every year. There are two types of desert, hot deserts and cold deserts. The main hot deserts are Thar, Arabian, Sahara, Kalahari, Victoria, etc. Sahara is the largest hot desert in the world. And Turage and Bedouins, these are the main nomadic tribes in Sahara. Camel is called the sheep of the desert, is the most important animal in the desert. Ladakh is a high mountainous area with extreme aridity, and Ladakh is one of the last place where Tibetan Buddhism continues to be practiced as a living religion. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.